السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، یہ اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ آج ایک خبر بجلی بن کے گری کہ میرے حقیقی چچا جناب عبدالمجید صاحب بمبئی میں اپنے گاؤں سے دور انتقال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم سب کو اور ان کے بہت زیادہ قریبی اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صبر و سلوان کی اور توفیق دے اور انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے، ضروری ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اپنی موت کو تھوڑا سا یاد کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت۔ اے لوگو، لذتوں کو توڑ دینے والی اس حقیقی چیز کو یاد کرو جسے موت کہتے ہیں۔ کیوں؟ بچھڑا کچھ اس ادا سے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ایک ہنستا مسکراتا بااخلاق چہرہ آج ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ بڑے بااخلاق تھے، بڑے ملنسار تھے ہمارے چچا عبدالمجید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون نصیب فرمائے۔ جب میں مالیگاؤں میں پڑھتا تھا تو چھٹیوں میں جب بمبئی جاتا تھا تو کئی بار ان کے گھر پہ قیام کرتا تھا، بڑی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے تمام عمل صالح کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ بہرحال بچھڑا کچھ اس ادا سے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ دن بدن ہماری عمر بڑھتی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا۔ بچہ بڑا نہیں ہوتا ہے، بچے کی عمر گھٹتی ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ جو وہ بڑھتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، اس کی عمر گھٹتی ہے۔ انسان جس قدر بڑا ہوتا ہے اس قدر اپنی موت کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ سے اور تمام بھائیوں سے عرض کروں گا، خاص کر اس گروپ سے
जो जवान और नौजवान हैं कि मेरे भाई और दोस्तों, ये वक्त हमारे काम करने का है। अपनी जवानी को, अपनी नौजवानी की हम कद्र कर लें और मौत की तैयारी कर लें, मौत के बाद के लिए अमल कर लें। जवानी यूं तो बहुतों को मिली है जिंदगानी में, जवानी यूं तो बहुतों को मिली है दार फानी में, बहुत कम है। जवानी यूं तो बहुतों को मिली है दार फानी में, बहुत कम है जिन्हें इबरत मिली है नौजवानी में। नौजवान अपना वक्त ऐसे ही गुजार देता है और मौत की तैयारी नहीं कर पाता। जवानी ख्वाब की सी बात है इस जिंदगानी में, ख्वाब की तरह ये जवानी गुजर जाती है। कल हम भी 20 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, आज हमने भी 50 साल की उम्र में कदम रखा। जवानी ख्वाब की सी बात है इस जिंदगानी में, मगर ये बात किसको याद रहती है जवानी में। ठहर जाता है चलते चलते यूं अफसाने हस्ती, ठहर जाता है चलते चलते यूं अफसाने हस्ती, कि जैसे कहते कहते भूल पड़ जाए कहानी में। और शबाबे जावेदानी है जवानी उन जवानों की, शबाबे जावेदानी है जवानी उन जवानों की, जो लुट जाए जवानी में, जो मिट जाए जवानी में। क्योंकि नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उस नौजवान का शुमार जो अपनी जवानी को अल्लाह के अताअत में गुजार दे, उन लोगों में फरमाया जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उस दिन जगह देगा जिस दिन सूरज सवा नेज़े पे गर्मी फैला रहा होगा और अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। तो जवानी ख्वाब की सी बात है इस जिंदगानी में, मगर ये बात किसको याद रहती है जवानी में। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को नसीहत करते हुए फरमाया, अमर इब्न मैमून अल-औदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन व हुवा यइज़ु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। शबाबका क़ब्ल हरमिका, ऐ जवानों और नौजवानों, तुम अपनी जवानी को, अपनी नौजवानी को बूढ़ा होने से पहले गनीमत समझ लो। और अल्लाह के लिए जब तक तुम्हारे दिमाग में ताकत, आंखों में रोशनी, जुबान में कुव्वत, गर्म खून, बदन में ताकत है, अपने आखिरत के लिए नेक अमल कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हर ज़ी रूह ये देख ले कि उसने कल के लिए क्या इकट्ठा कर रखा है। शबाबका क़ब्ल हरमिक, ऐ जवानों अपनी जवानी को गनीमत समझ लो बुढ़ापे से पहले। वसिहतका क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी आफियत को, अपनी सेहत को गनीमत जान करके ढेर सारे नेक अमाल कर लो, कबल इसके कि तुम बीमार हो जाओ, ऐसी बीमारियां तुम्हें लायक हो जाएं कि तुम नेक अमल के लिए तरसो, मगर उस नेक अमल की तुम्हारे पास ताकत ना हो। सेहतका क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमारी आ जाने से पहले। वह ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी खुशहाली को, अपनी मालदारी को, अपनी दौलत को, अपने रुपए और पैसों को गनीमत समझो फकीर हो जाने से पहले। अपने माल से, अपनी खुशहाली से, अपनी दौलत से, अपने रुपए और पैसों से जन्नत खरीद लो, जहन्नम से अपनी गर्दनों को आजाद कर लो, जरूरतमंदों के काम आ जाओ, रिश्तेदारों के हुकूक अदा कर लो।
अपने मालदारी को गनीमत समझो फकीर हो जाने से पहले। वह फरागत क़ब्ल शुग़लिक, और अपनी फुर्सत के औकात को, अपने खाली औकात को गनीमत समझ करके एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को कीमती जान करके मौत के बाद के लिए अमल कर लो, कबल इसके कि तुम बिजी हो जाओ। बाद में कहोगे हम बिजी हैं, हमें वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, क्योंकि जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको देखेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसको देख लेगा। वह फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, तो अपने फुर्सत के औकात को गनीमत समझो बिजी हो जाने से पहले। मेरे भाइयों, मौत आनी है, ये इकामत हमें पैगाम सफर देती है, ये इकामत हमें पैगाम सफर देती है, जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। और आखिर में फरमाया वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो मौत आ जाने से पहले। हमारे चचा आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें क्या पता था, वो हमारे वालिद साहब से छोटे हैं, हमारे सबसे छोटे चचा थे वो, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अपने बेटों को, अपने अहल-ओ-अयाल को छोड़ करके चले गए अपने अमल के साथ। अमल ही काम आने वाला है, तो अपनी जिंदगी को गनीमत समझो अपनी मौत से पहले। ये हदीस मुस्तदरक हाकिम में है, नसई में है, और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए नसीहत करते हुए फरमाया यत्बउल मय्यत सलास, इंसान जब मर जाता है तो उसके पीछे तीन चीजें होती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। उसके अहल-ओ-अयाल होते हैं, उसका माल होता है और उसका अमल होता है। फयरजिउ इस्नान व यबका वाहिद, यरजिउ अहलुहु व मालुहु, मरने के बाद उसका माल और दौलत, उसका अहल-ओ-अयाल उसका साथ छोड़ देते हैं, उसका अमल उसका साथ देता है। अमल की फिक्र करो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, अपने वक्त को जाये न करो, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। पूछती है शाहों से मकबरों की खामोशी, पूछती है शाहों से मकबरों की खामोशी, तख्त ताज के मालिक आज क्यों अकेले हैं। कितने अंबिया कब्रों में दफन है, कितने औलिया कब्रों में दफन है, कितने बादशाह मुल्कों के मालिक कब्रों में दफन है। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, जो यहाँ आया है जाना उसको होगा एक दिन। जब फना ठहरी तो फिर क्या 100 बरस, क्या एक दिन। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी में तुमको मिलना है, और इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा जिंदा करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं, हमें पलट कर अपने अल्लाह के पास जाना है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है, वो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में का कौन अच्छा अमल करने वाला है। ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। तबरानी की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
अतानी जिब्राइल, मेरे पास एक दिन हजरत जिब्राइल आए। फक़ाल या मोहम्मद इश्मा शिअत फ़इन्नका मय्यतुन, जितना जीना चाहो जी लो, आखिरकार तुमको मौत आनी है। वअहबिब मन अहबब्ता फ़इन्नका मुफ़ारिक़ु, जिससे चाहो दिल लगा लो, जिससे चाहो दोस्ती कर लो, जिससे चाहो मोहब्बत कर लो। फ़इन्नका मुफ़ारिक़ु, क्योंकि उसको तुम छोड़ करके जाने वाले हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, हरगिज़ नहीं, जब रूह हस्ली तक पहुंच जाएगी, वक़ील मन राक़, और कहा जाएगा कोई है झाड़ फूंक करने वाला, वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, इंसान यकीन कर लेगा कि अब ये जुदाई का वक्त है। तो अहबिब मन शिअता, जिससे चाहो दिल लगा लो, फ़इन्नका मुफ़ारिक़ुहु, तुम उससे जुदा होने वाले हो। वअमल मा शिअता, और जो चाहो अमल कर लो, फ़इन्नका मजज़ीयुन बिही, क्योंकि तुम्हें उसी अमल का बदला मिलने वाला। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा। गरज हर नेक और बद का बराबर फैसला होगा। और फरमाया हज़रत जिब्राइल ने, व शरफुल मोमिन क़यामुहु बिल्लैल, मोमिन की को शरफ, जो मोमिन की सआदत, मोमिन की अजमत इसमें है कि वो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करे। व इज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउ अनिन नास, और उसकी इज्जत और करामत इसमें है कि लोगों के पास जो माल दौलत है उससे मुस्तग़नी रहे, उससे बच करके रहे, कम पर राजी रहना सीखे। इसलिए मौत को याद करके इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए अपनी उम्र के इस कीमती लम्हात को गुजारें, ताकि हमारे मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत की बशारत दे। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुत्मइन्ना, आ अपने रब की तरफ, तुझसे तेरा रब राजी, तू अपने रब से राजी। फदखुली फी इबादी, आ मेरे नेक मंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, आ मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। पलट आ अपने आका की तरफ, ऐ नफ्स ईमानी, तू उससे खुश, वो तुझसे खुश। ज़हे इनाम रब्बानी, मेरे बंदों में शामिल हो, मेरी जन्नत में दाखिल हो। तुझे हर ऐश, हर आराम, हर इनाम हासिल हो। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझे, आप तमाम भाइयों को, तमाम मुसलमानों को जो भी इस रूए ज़मीन पर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मौत से पहले आखिरत की तैयारी करने के अल्लाह तबारक तआला उन्हें फिक्र अता फरमाए, क्योंकि इज़ा जाअ अजलुहा वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी का वक्त आ जाएगा एक लम्हा के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें जहन्नम के अजाब से रिहाई दे। अल्लाह ताला हमें अपने उम्र अजीज को कीमती समझकर उसकी कदर करने की तौफीक दे, जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह दे। जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे रिश्तेदार हों चाहे दूर के हों, जो भी मोमिन और मुस्लिम इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। उनके पीछे के लोगों के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा गफिर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।